Ladies and gentlemen, welcome to ifactioner.com's learning video tutorials. In today's tutorial, we will learn more than 300 Hindi and Urdu sentences and phrases which we can speak in the classroom environment. As a teacher, let's start. I will first read the English sentence and then I will write in Roman, Hindi and Urdu. So this will not be in the Hindi script or Urdu script, rather it would be in Roman, Hindi and Urdu script. Good morning students would be Shubh Prabhat in Hindi or Subha Bakhair in Urdu students. Shubh Prabhat, Subha Bakhair students. Good afternoon students. Good afternoon is usually good afternoon. So good afternoon students. I hope that you are ready for a test. मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट के लिए तैयार हैं. मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट के लिए तैयार हैं. Take out your English books. अपनी अंग्रेजी or अंग्रेजी. So in Hindi we say अंग्रेजी and in Urdu we say अंग्रेजी. अपनी अंग्रेजी की किताबें निकालें. अपनी अंग्रेजी की किताबें निकालें. John, please read paragraph 1 on page number 12. John is the name of the boy. John. In Hindi we say कृपया करके for please. कृपया करके. And in Urdu we say मेहरबानी करके. मेहरबानी करके. Please read paragraph 1 on page number 12. John, कृपया करके मेहरबानी करके. अब now you can say पढ़ना. पढ़ने और सफ़ा for page. पढ़ना is used in Hindi for a page and सफ़ा is used in Urdu for a page. John, कृपया करके मेहरबानी करके पढ़ने या सफ़ा नंबर 12 का पहला पैराग्राफ पढ़ो. पहला means first. John, कृपया करके मेहरबानी करके पढ़ने सफ़ा नंबर 12 का पहला पैराग्राफ पढ़ो. Open your mathematics books. अपनी हिसाब. Mathematics is हिसाब की किताबें निकालें. अपनी हिसाब की किताबें निकालो. अपनी हिसाब की किताबें निकालें. Today we will cover chapter number 12. आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे. आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे. I hope that you all have done your homework. मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपना
घर का काम, घर का काम इज होमवर्क। घर का काम किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने घर का काम किया होगा। John, why did you not do your homework? Or John, why didn't you do your homework? John, तुमने अपना घर का काम क्यों नहीं किया? John, तुमने अपना घर का काम क्यों नहीं किया? Jane, I want to talk to your parents. Jane, मैं तुम्हारे माता पिता इन हिंदी और वालिदैन वालिदैन इन उर्दू से बात करना चाहता हूँ फॉर मेल और चाहती हूँ फॉर फीमेल। जेन, मैं तुम्हारे माता पिता वालिदैन से बात करना चाहती हूँ। Ask them to come with you on the coming Monday. उनसे कहना कि तुम्हारे साथ आने वाले सोमवार को आएं। उनसे कहना कि तुम्हारे साथ आने वाले सोमवार को आएं। John, can you please clean the blackboard? John, क्या तुम कृपया करके कृपया और मेहरबानी मेहरबानी कृपया is used in Hindi and मेहरबानी is used in Urdu करके जान, क्या तुम कृपया मेहरबानी करके ब्लैक बोर्ड साफ कर सकते हो? जान, क्या तुम कृपया करके मेहरबानी करके ब्लैक बोर्ड साफ कर सकते हो? आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट के लिए प्रिंसिपल के दफ्तर जा रहा और रही। रहा इज़ यूज्ड फॉर मेल एंड रही इज़ यूज्ड फॉर फीमेल। जा रहा रही हूँ। मैं 10 मिनट के लिए प्रिंसिपल के दफ्तर जा रहा हूँ। बी क्वाइट, चुप हो जाएं, चुप हो जाएं। There should be a pin dropped silence. Pin drop खामोशी और सन्नाटा होना चाहिए। खामोशी is used in Urdu for silence and sannata is used in Hindi. Pin drop silence और pin drop खामोशी और सन्नाटा होना चाहिए। Why are you late? तुम देर से क्यों आए हो? और तुम्हें देर क्यों हुई? तुम्हें देर क्यों हुई? The first sentence, तुम देर से क्यों आए हो means why have you come late? And तुम्हें देर क्यों हुई? Why are you late? Why have you come late? तुम देर से क्यों आए हो? So in the first sentence it's better if we just say तुम्हें देर क्यों हुई? Why are you late? And in the second sentence, why have you come late? तुम देर से क्यों आए हो? Why did you not come yesterday?
why didn't you come yesterday? In proper English, we write why did you not come yesterday? But in during conversation, we can say why didn't you come yesterday? तुम कल क्यों नहीं आए थे for male and आई थी for female. तुम कल क्यों नहीं आए थे? I hope that you have prepared for the quiz. मुझे उम्मीद है, you can say मुझे उम्मीद है of, मैं आशा करता हूँ कि आपने क्विज के लिए तैयारी की होगी. मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ और करती हूँ कि आपने क्विज के लिए तैयारी की होगी. सिट डाउन, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं. स्टैंड अप, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं. John, come and sit in the front row. John, आओ और पहली रो, और we usually say line, पहली लाइन में बैठो. John, आओ और पहली लाइन में बैठो. Jane, go back and sit in the last row. Jane, पीछे जाओ और आखिरी लाइन में बैठो. जेन, पीछे जाओ और आखिरी लाइन में बैठो. Your attendance is short. तुम्हारी हाजिरी कम है. तुम्हारी अटेंडेंस कम है, तुम्हारी हाजिरी कम है. If your attendance is short, then you will not be able to sit in the exams. अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो आपको एग्ज़ाम्स में बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी. अगर आपकी हाज़िरी कम होगी, अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो आपको एग्ज़ाम्स में बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी. You haven't submitted the last month's fee. तुमने आखिरी महीने की फीस नहीं दी है. तुमने आखिरी महीने की फीस नहीं दी है. If your fee is not submitted, then you will not be able to take the exams. अगर तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हें एग्ज़ाम्स लेने की इजाज़त नहीं मिलेगी. अगर तुम्हारी फ़ीस जमा नहीं हुई तो तुम्हें एग्ज़ाम्स लेने की इजाज़त नहीं मिलेगी. और यू कैन से एग्ज़ाम्स देने. You need to learn this paragraph by heart. तुम्हें ये
paragraph. So right now we are talking to the singular person. Tumhe is used for a singular person, or when we are talking to the younger people. And if we want to talk to a lot of people or out of respect, then we say आपको. तुम्हें और आपको ये पैराग्राफ रट लेना और रटने की ज़रूरत है. तुम्हें ये पैराग्राफ रटने की ज़रूरत है. Are there any questions? क्या कोई सवाल हैं? क्या कोई सवाल हैं? If you have any question, then raise your hand. अगर आपका कोई सवाल है तो अपना हाथ उठाएं. अगर आपका कोई सवाल है तो अपना हाथ उठाएं. I'm surprised that how did you pass? मैं हैरान हूँ कि तुम पास कैसे हुए. मैं हैरान हूँ कि तुम पास कैसे हुए. Attend your roll call. रोल कॉल के लिए तैयार हो जाएं. रोल कॉल के लिए तैयार हो जाएं. It literally means get ready for your roll call. रोल कॉल के लिए तैयार हो जाएं. Let's start the attendance call. चलें हाजिरी देखते हैं. It means let's see the attendance. चलें हाजिरी करते हैं. और you can say हाजिरी लेना शुरू करते हैं. हाजिरी लेना शुरू करते हैं. Let's start the attendance call. Note it down. इसे लिख लें. इसे लिख लें. Write it down. It also means इसे लिख लें. इसे लिख लें. So note it down can be इसे नोट कर लें. इसे लिख लें और इसे नोट. इसे नोट कर लें. इसे लिख लें. You should remember it by heart. आपको ये पक्का याद होना चाहिए. आपको ये पक्का याद होना चाहिए. Have you completed your assignment? क्या आपने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है. क्या आपने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है. Did you do your assignment? क्या आपने अपनी असाइनमेंट की है. और क्या आपने अपनी असाइनमेंट की. Because क्या आपने अपनी असाइनमेंट की है would be translated as have you done your assignment? You should submit your homework on Monday. आपको अपना घर का काम मंडे को जमा कराना चाहिए. आपको अपने घर का काम मंडे को जमा कराना चाहिए. What's so funny? So here we can say what's
so funny. What's so funny? इतना इतने मज़े की क्या बात है? इतने मज़े की क्या बात है? और यू कैन से इतनी मज़ाहिया क्या बात है? मज़ाहिया, इतनी मज़ाहिया क्या बात है? Why are you laughing? तुम हंस क्यों रहे हो? फॉर मेल और रही हो फॉर फीमेल. तुम हंस क्यों रहे हो? और तुम हंस क्यों रही हो? डोंट स्पीक बोल सॉरी डोंट स्पीक वुड बी ट्रांसलेटेड एज बोलो नहीं. बोलो नहीं. साइलेंस, चुप चुप. शेयर द जोक विद द होल क्लास. पूरी क्लास को पूरी क्लास के साथ पूरी क्लास को लतीफ़ा सुनाएं. लतीफ़ा सुनाओ. पूरी क्लास को लतीफ़ा सुनाओ और पूरी क्लास को लतीफ़ा सुनाएं. Turn to chapter number 5. Chapter number 5 पर जाएं. Chapter number 5 पर जाएं. Turn to page number 20. पढ़ना और सफ़ा. पढ़ना is used in Hindi, सफ़ा is used in Urdu. पढ़ना और सफ़ा नंबर 20 पर जाएं. पढ़ना सफ़ा नंबर 20 पर जाएं. Start reading. पढ़ना शुरू करें और शुरू करो. पढ़ना शुरू करें is a politer version, and पढ़ना शुरू करो is usually used for students. Start reading the chapter number 21. Start reading the chapter number 21. Chapter number 21 को पढ़ना शुरू करो. चैप्टर नंबर 21 को पढ़ना शुरू करो. I will take a test next week. मैं अगले हफ्ते टेस्ट लूँगा और गी. गा is used for male and गी is used for female. मैं अगले हफ्ते टेस्ट लूँगा. मैं अगले हफ्ते टेस्ट लूँगी. You should prepare chapters 1 to 5 for the upcoming exams. आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए चैप्टर 1 से I will write 1 से 5 तक तैयार करने चाहिए. आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए चैप्टर 1 से 5 तैयार करने चाहिए. डोंट कट जोक्स. लतीफ़े ना सुनाओ और मजाक ना करो. लतीफ़े ना सुनाओ, मजाक ना करो. डोंट स्पीक. मत बोलो. और यू कैन से ना बोलो. मत और ना बोलो.
Don't make noises. आवाज़ें ना निकालो. आवाज़ें. So it's आवाज़ें और आवाज़ें. ना निकालो. आवाज़ें ना निकालो. Don't whisper. सरगोशी ना करो. सरगोशी ना करो. Don't speak on the other's papers. दूसरों का पेपर ना देखो. दूसरों का पेपर ना देखो. I need your 100% attention. मुझे आपकी 100% attention चाहिए. मुझे आपकी 100% attention चाहिए. Be attentive. Attentive हो जाओ और होशियार हो जाओ. Attentive और होशियार हो जाओ. You should come to the class regularly. आपको क्लास में रेगुलर आना चाहिए. आपको क्लास में रेगुलर आना चाहिए. Your attendance is short. आपकी हाज़िरी और आपकी अटेंडेंस. हाज़िरी अटेंडेंस कम है. आपकी हाज़िरी कम है. Who is the monitor of the class? क्लास का मॉनिटर कौन है? क्लास का मॉनिटर कौन है? Why did you not bring your bag? आप अपना बस्ता क्यों नहीं लेकर आए और आईं? I is for male and I is for female. आप अपना बस्ता क्यों नहीं लेकर आए? और you can simply say तुम अपना बस्ता लेकर क्यों नहीं आए? How can you forget to bring the book? तुम किताब लाना कैसे भूल सकते हो और सकती हो? तुम किताब लाना कैसे भूल सकते हो? तुम किताब लाना कैसे भूल सकती हो? Do you have any questions? क्या आपका कोई सवाल है? क्या आपका कोई सवाल है? Jane, tell me the meaning of dash. Jane, मुझे डैश का मतलब बताओ. Jane, मुझे डैश का मतलब बताओ. John, stand up. John, खड़े हो जाओ. John, खड़े हो जाओ. Jane, tell me dash dash dash. Jane, मुझे डैश 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 बताओ. Jane, मुझे डैश 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 बताओ. Jane, मुझे ये बताओ. Jane, मुझे डैश 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 बताओ. Good. Sit down. Good. Sit down would be अच्छा है बैठ जाओ. So it would be अच्छा है बैठ जाओ. अच्छा है बैठ जाओ. Why can you not sit still or why can't you sit still?
आप टिक के क्यों नहीं बैठ सकते फॉर मेल एंड सकती फॉर फीमेल। आप टिक के क्यों नहीं बैठ सकते? आप टिक के क्यों नहीं बैठ सकती? Why were you not paying attention? आप और तुम. So here we will use तुम. तुम attention क्यों नहीं दे रहे और रही. रहे is used for male and रहे थे is used for male and रही थी for female. तुम attention क्यों नहीं दे रहे थे? तुम attention क्यों नहीं दे रही थी? Pay attention please. Attention दो. और you can say कृपया करके, मेहरबानी करके attention दो. कृपया मेहरबानी करके attention दो. और you can say कृपया मेहरबानी करके होशियार रहो. Why were you talking? तुम बातें क्यों कर रहे और रही थे? So तुम बातें क्यों कर रहे थे is a male version and तुम बातें क्यों कर रही थी will be used for a female. तुम बातें क्यों कर रहे थे? What were you talking about? तुम किस बारे में बात कर रहे थे और कर रही थी for female. तुम किस बारे में बात कर रहे थे? You should ask the questions from me. तुम्हें तुम्हें मुझसे सवाल पूछने चाहिए. तुम्हें is you. तुम्हें मुझसे सवाल पूछने चाहिए. तुम्हें मुझसे सवाल पूछने चाहिए. तुम्हें मुझसे सवाल पूछने चाहिए. Does he know more than me? क्या उसे मुझसे ज़्यादा और ज़्यादा पता है? So ज़्यादा is usually used in Hindi and ज़्यादा is used in Urdu. क्या उसे मुझसे ज़्यादा पता है? क्या उसे मुझसे ज़्यादा पता है? Don't try to be over clever. ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत और ज़रूरत नहीं है. In Urdu we say ज़रूरत and in Hindi we say ज़रूरत. ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है. Next time I will send you to the principal's office. अगली बारी और अगली दफ़ा मैं तुम्हें प्रिंसिपल के दफ्तर भेज दूंगा फॉर मेल एंड दूंगी फॉर फीमेल. मैं अगली बारी अगली दफ़ा मैं तुम्हें प्रिंसिपल के दफ्तर भेज दूंगा और भेज दूंगी. आर यू गेटिंग मी? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है. It literally means do you people understand me? क्या आप लोगों को मेरी समझ आ रही है? और you can say क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है?
Are you following me? क्या? So it would be same. आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? Did you understand? क्या आपको समझ आई? क्या आपको समझ आई? Have you understood the topic? क्या आपको टॉपिक की समझ आ गई है? क्या आपको टॉपिक की समझ आ गई है? I will not repeat the answer. मैं जवाब को दोबारा नहीं बताऊंगा और गी। मैं जवाब को दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं जवाब को नहीं दोहराऊंगी. You can say दोहराना, but it's a little difficult. I am repeating the lecture. मैं लेक्चर को दोहरा और रिपीट कर रही हूँ. मैं लेक्चर को दोहरा और रिपीट कर रही हूँ. And if I am a male, then I would say मैं लेक्चर को दोहरा रहा हूँ. I am repeating one more time. मैं एक और दफ़ा बता रहा और रही हूँ. मैं एक दफ़ा और बता रहा हूँ. You should write all the answers in your notebooks. आपको सब सवाल नोटबुक या और यू कैन से कापियों. आपको सब सवाल कापियों में लिख लेने चाहिए. आपको सब सवाल कापियों में लिख लेने चाहिए. और सवाल इज क्वेश्चंस. आपको सब जवाब इज आंसर्स. आपको सब जवाब कापियों में लिख लेने चाहिए. Now I am going to check the homework. अब मैं होमवर्क और अब मैं घर का काम चेक करूँगा और गी. गा इज फॉर मेल, गी इज फॉर फीमेल. अब मैं घर का काम चेक करूँगा. टेक आउट योर रफ डायरी. अपनी रफ डायरी निकालें. अपनी रफ डायरी निकालें. You can do this assignment in a group. आप ये काम ग्रुप में कर सकते हैं. आप ये काम ग्रुप में कर सकते हैं. Have you made your group? क्या आपने अपना ग्रुप बना लिया है? क्या आपने अपना ग्रुप बना लिया है? Why did nobody pick him? क्यों किसी ने उसे नहीं चुना? क्यों किसी ने उसे नहीं चुना? You can work in groups. आप ग्रुप्स में काम कर सकते हैं. आप ग्रुप्स में काम कर सकते हैं. Can you repeat the question? क्या आप सवाल को दोहरा सकते हैं? क्या आप
सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं. इट्स बेटर इफ वी से क्या आप सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं. क्या आप सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं. और if the student is female then we will say कि आप सवाल को दोबारा पूछ सकती हैं. क्या आप सवाल को दोबारा पूछ सकती हैं. What was your question? आपका सवाल क्या था. आपका सवाल क्या था. It's not the right answer. ये दुरुस्त और सही. ये ठीक जवाब नहीं है. ये ठीक जवाब नहीं है. Try to write neatly. साफ साफ लिखने की कोशिश करें. साफ साफ लिखने की कोशिश करें. Try to speak slowly. आहिस्ता बोलने. आहिस्ता और धीरे. You can say धीरे बोलने की कोशिश करो और करें. आहिस्ता धीरे बोलने की कोशिश करो. Can you write neatly? क्या आप साफ और you can say तुम. क्या तुम साफ लिख सकते और सकती. सकते is for female male and सकती is for male. सकती is for female sorry. क्या तुम साफ लिख सकते हो और फीमेल वर्जन इज क्या तुम साफ लिख सकती हो. कैन यू स्पीक स्लोली. क्या तुम आहिस्ता और धीरे बोल सकते फॉर मेल. सकती फॉर फीमेल. क्या तुम आहिस्ता धीरे बोल सकते हो. कैन यू बी अ लिटिल लाउडर. क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोल सकती हो. क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो. ओके लेट्स सी who is going to answer the next question. ठीक है देखते हैं कि अगला जवाब कौन देगा. ठीक है देखते हैं कि अगला जवाब कौन देगा. नो नॉट यू. नहीं तुम नहीं. नहीं तुम नहीं. यस यू स्टैंड अप एंड आंसर. हाँ तुम खड़े और खड़ी. खड़े इज फॉर मेल एंड खड़ी इज फॉर फीमेल. तुम खड़े खड़ी हो जाओ और जवाब दो. हाँ तुम खड़े हो जाओ और जवाब दो. What do you mean? What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है. तुम्हारा मतलब क्या है. What is the meaning of dash? Dash का मतलब क्या है. डैश का मतलब क्या है. हाउ आर यू. आप कैसे हैं. आप कैसे हैं. हाउ आर यू टुडे. आज आप कैसे हैं.
आज आप कैसे हैं? Stop talking. बोलना बंद कर दो। बोलना बंद कर दो। Settle down please. कृपया मेहरबानी करके बैठ जाएं। कृपया मेहरबानी करके बैठ जाएं। Put your books away. अपनी किताबें दूर रख दें। अपनी किताबें दूर रख दें। Pack up your bags. अपने बस्ते बांध लो। अपने बस्ते बांध लो। Put the books in the bags. किताबों को बस्तों में रख लो। किताबों को बस्तों में रख लो। Why were you absent yesterday? आप और you can say तुम कल गैर हाजिर क्यों थे for male and क्यों थी for female. तुम कल गैर हाजिर क्यों थे और you can say तुम कल क्यों नहीं आए थे और आई थी। तुम कल क्यों नहीं आए थे? तुम कल क्यों नहीं आई थी? The class started 5 minutes ago. Where were you? क्लास 5 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। तुम कहाँ थे for male and तुम कहाँ थी for female. क्लास 5 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। तुम कहाँ थे? Don't do it again. ऐसा दोबारा नहीं करना। ऐसा दोबारा नहीं करना। It should never happen again. ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। Time's up. समा वक्त ख़त्म हो चुका है। समा is usually used in Hindi and वक्त is usually used in Urdu. समा वक्त ख़त्म हो चुका है। Stop writing. लिखना बंद कर दें। लिखना बंद कर दें। Five minutes are left. 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बचे हैं। You have 5 minutes to finish your papers. आपके पास अपने पेपर ख़त्म करने के लिए 5 मिनट हैं। आपके पास अपने पेपर्स ख़त्म करने के लिए 5 मिनट हैं। आपके पास अपने पेपर्स ख़त्म करने के लिए 5 मिनट हैं। You have 2 minutes to hand over your papers. आपके पास अपने पेपर्स मुझे देने के लिए 2 मिनट हैं। आपके पास अपने पेपर्स मुझे देने के लिए 2 मिनट हैं। Remember to write your names and roll numbers.
अपने नाम और रोल नंबर्स को लिखना याद रखें। अपने नाम और रोल नंबर्स को लिखना याद रखें। लेट्स फिनिश द लेसन। चलें हम लेसन ख़त्म करते हैं। चलें हम लेसन ख़त्म करते हैं। That's all students. इतना ही students, or you can say बस इतना ही students. It's time to stop. अब रुकने का समा वक्त है। अब रुकने का समा है, अब रुकने का वक्त है। It's time to wrap up. अब ख़त्म करने का समा वक्त है। अब ख़त्म करने का वक्त है। We will finish after solving this question. हम ये सवाल हल करने के बाद ख़त्म करेंगे। हम ये सवाल हल करने के बाद ख़त्म करेंगे। We will continue from here tomorrow. हम कल यहाँ ही से जारी रखेंगे। हम कल यहीं से जारी रखेंगे। You can leave. आप जा सकते हैं। For male and आप जा सकती हैं for female. आप जा सकते हैं। Yes, you can. हाँ, आप कर सकते हैं और कर सकती हैं। हाँ, आप कर सकते हैं मेल। हाँ, आप कर सकती हैं फीमेल वर्जन। Yes, you can go to the washroom. हाँ, तुम टॉयलेट जा सकती हो। हाँ, तुम टॉयलेट जा सकते हो। You can go. तुम जा सकते हो और तुम जा सकती हो। तुम जा सकते हो, तुम जा सकती हो। You can go after 5 minutes. तुम या और you can say आप 5 मिनट बाद जा सकते हैं और आप 5 मिनट बाद जा सकती हैं for female. You can go after this period. तुम इस पीरियड के बाद जा सकते और सकती हो। तुम इस पीरियड के बाद जा सकते हो। I am doing it for your own good. मैं ये तुम्हारे अपने भले के लिए कर रहा और रही हूँ। If I'm male then रहा हूँ, if I'm female then रही हूँ। मैं ये तुम्हारे अपने भले के लिए कर रहा हूँ। Got it? समझ आ गई।
I have to finish the course. मुझे कोर्स ख़त्म करना है. मुझे कोर्स ख़त्म करना है. You can do it in the recess. तुम ये आधी छुट्टी में कर सकते और सकती. सकते इज़ फॉर मेल एंड सकती इज़ फॉर फीमेल. हो. तुम ये आधी छुट्टी में कर सकते हो. शो मी योर होमवर्क. मुझे अपना घर का काम दिखाओ. मुझे अपना घर का काम दिखाओ. शो मी योर बुक. मुझे अपनी किताब दिखाओ. मुझे अपनी किताब दिखाओ. Open your books and turn to page number 20. अपनी किताबें खोलो और पढ़ने और सफ़ा नंबर 20 खोलो और सफ़ा नंबर 20 पर जाओ. अपनी किताबें खोलो और पढ़ना सफ़ा नंबर 20 पर जाओ. You should pay attention. आपको ध्यान देना चाहिए. आपको ध्यान देना चाहिए. Your attendance should be at least 80%. आपकी हाज़िरी कम अज़ कम 80% होनी चाहिए. आपकी हाज़िरी कम अज़ कम 80% होनी चाहिए. I can't do anything in this matter. इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता. इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता फॉर मेल एंड कर सकती फॉर फीमेल. मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता. You should talk to the principal. आपको प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए. आपको प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए. I wish that I could help you. मेरी तमन्ना आशा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता और सकती. And it's better if we just write काश. काश के मैं तुम्हारी मदद कर सकता. काश के मैं तुम्हारी मदद कर सकती. I can't give you grace marks. मैं तुम्हें ग्रेस नंबर्स नहीं दे सकता. और मैं तुम्हें ग्रेस नंबर्स नहीं दे सकती फॉर फीमेल. मैं तुम्हें ग्रेस नंबर्स नहीं दे सकता. I will recheck your paper. मैं तुम्हारा पेपर फिर से चेक करूँगा फॉर मेल एंड करूँगी फॉर फीमेल. मैं तुम्हारा पेपर फिर से चेक करूँगा. You should stop writing. आपको लिखना बंद कर देना चाहिए. आपको लिखना बंद कर देना चाहिए.
Put your pens and pencils down. अपने पेन और पेंसिलें नीचे रख दें. अपने पेन और पेंसिलें नीचे रख दें. If you have forgotten your homework at home, then why have you come? If you have forgotten your homework at home, then why have you come? अगर तुम अपना घर का काम घर पर भूल गए हो तो तुम क्यों आए हो? अगर तुम अपना घर का काम घर पर भूल गए हो तो तुम क्यों आए हो? And if we are talking to a female, then we will say अगर तुम अपना घर का काम घर पर भूल गई हो तो तुम क्यों आई हो? You can start writing now. आप अब लिखना शुरू कर सकते हैं. आप अब लिखना शुरू कर सकते हैं. Stop writing. लिखना बंद कर दें. लिखना बंद कर दें. Hand over your papers. अपने पेपर्स मुझे दे दें. अपने पेपर्स मुझे दे दें. John, please collect the papers. John, कृपया करके मेहरबानी करके पेपर्स को जमा करें. जॉन कृपया करके मेहरबानी करके पेपर्स को जमा करें. जेन प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन पेपर्स. जेन कृपया और मेहरबानी करके पेपर्स को बांटें. जेन्स कृपया मेहरबानी करके पेपर्स को बांटें. Why do you need an extra sheet? आपको एक्स्ट्रा शीट क्यों चाहिए? और you can ask आपको अज़ाफ़ी शीट क्यों चाहिए? Does anyone has the notes? क्या किसी के पास नोट्स हैं? क्या किसी के पास नोट्स हैं? Has anyone brought the new book? क्या कोई नई किताब लाया है? क्या कोई नई किताब लाया है? Did anyone check on the internet? क्या किसी ने इंटरनेट पर चेक किया? क्या किसी ने इंटरनेट पर चेक किया? You should not be copying from the internet. आपको इंटरनेट से कॉपी और नकल नहीं करनी चाहिए. आपको इंटरनेट से नहीं नकल करनी चाहिए. You can get help from the internet. आप इंटरनेट से मदद ले सकते हैं. और the female version would be आप इंटरनेट से मदद ले सकती हैं. आप इंटरनेट से मदद ले सकते हैं.
You can search it on the net. आप इसे नेट पर ढूंढ सकती हैं। आप इसे नेट पर ढूंढ सकते हैं। Don't forget to answer the main question. मेन सवाल का जवाब देना ना भूलना। मेन सवाल का जवाब देना ना भूलना। Don't forget to bring your assignments. अपनी assignments को लाना ना भूलना। अपनी assignments को लाना ना भूलना। Did you not listen to me? क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? Why did you not pay the attention first time? आपने पहली दफा ध्यान क्यों नहीं दिया? आपने पहली दफा ध्यान क्यों नहीं दिया? Did you not understand me? क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? Repeat it. इसे दोहराएं। इसे फिर से करें। इसे दोहराएं। इसे फिर से बोलें। इसे फिर से करें। इसे फिर से करें। Can you repeat the answer? क्या आप जवाब दोबारा दे सकते हैं? और क्या आप जवाब को दोबारा दोहरा सकते हैं? क्या आप जवाब को दोहरा सकते हैं? Say it again. Say it again. इसे फिर से कहें। इसे फिर से कहें। इसे फिर से कहें। It's not polite. ये अच्छी बात नहीं है। It's not a good thing. ये अच्छी बात नहीं है। So we can also write it's not a good thing. It's not good. ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। It's bad. ये बुरा है। ये बुरा है। It's very bad. ये बहुत बुरा है और बुरी बात है। ये बहुत बुरा है। Be careful in the future. मुस्तकबिल में ध्यान दें। मुस्तकबिल में ध्यान दें। You should be very careful in the future. आपको मुस्तकबिल में बहुत केयरफुल होना चाहिए। आपको मुस्तकबिल में बहुत केयरफुल होना चाहिए। I can't hear you. मैं आपको नहीं सुन
सकता फॉर मेल एंड मैं आपको नहीं सुन सकती फॉर फीमेल। मैं आपको नहीं सुन सकता। स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलें, ऊंचा बोलें। I can't read your handwriting. मैं आपकी लिखाई नहीं पढ़ सकता और सकती। You can say मैं तुम्हारी लिखाई नहीं पढ़ सकता। Your writing is ineligible. आप तुम्हारी, so it's better if we say तुम्हारी लिखाई ना पढ़ने वाली है। और यू कैन से तुम्हारी लिखाई पढ़ी नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती। तुम्हारी लिखाई पढ़ी नहीं जा सकती। हैंग ऑन, रुको, रुको, वेट अ मिनट, एक मिनट के लिए रुको, एक मिनट के लिए रुको। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मैं एक लम्हे में वापस आता हूँ और आती हूँ फॉर फीमेल। मैं एक लम्हे में वापस आता हूँ, मैं एक लम्हे में वापस आती हूँ। स्टे देयर, वहाँ पर रुको, वहाँ पर रुको। कम हेयर, इधर आओ, इधर आओ। गो देयर, उधर जाओ, उधर जाओ। Why can you not sit still? तुम आराम से एक जगह क्यों नहीं बैठ सकते फॉर मेल, सकती फॉर फीमेल। तुम आराम से एक जगह क्यों नहीं बैठ सकते। Why are you teasing her? तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो। तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो। तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो। और यू कैन से तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो और कर रही हो फॉर फीमेल। Why were you both fighting? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। We will finish the chapter next week. हम अगले हफ्ते चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। हम अगले हफ्ते चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। We will complete it next time. हम इसे अगली दफ़ा मुकम्मल कर लेंगे। हम इसे अगली दफ़ा मुकम्मल कर लेंगे। We will continue our discussion tomorrow. हम अपनी डिस्कशन कल जारी रखेंगे। हम अपनी डिस्कशन कल जारी रखेंगे। Time's up. You should all stop writing. समा, वक्त ख़त्म हो चुका है। आप सबको लिखना बंद कर देना चाहिए। समा ख़त्म हो चुका है। आप सबको लिखना बंद कर देना चाहिए। Note down your homework.
अपना घर का अपना घर के लिए काम को लिख लें। अपना घर के लिए काम को लिख लें। You should revise the whole chapter. आपको पूरा चैप्टर दोहराना चाहिए। आपको पूरा चैप्टर दोहराना चाहिए। I will not give you any homework today. आज मैं आपको घर के लिए कोई काम नहीं दूंगा फॉर मेल एंड दूंगी फॉर फीमेल। आज मैं आपको घर के लिए कोई काम नहीं दूंगा। कम इन, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते और सकती फॉर फीमेल हो, तुम अंदर आ सकते हो। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते और सकती हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकती हो फॉर फीमेल। वेल डन, बहुत अच्छा। वेल डन, बहुत अच्छा। यू आर द बेस्ट क्लास, आप सबसे अच्छी क्लास हैं, आप सबसे अच्छी क्लास हैं। यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे अच्छे हैं। I haven't taught such a class. मैंने कभी भी ऐसी क्लास को नहीं पढ़ाया। मैंने कभी भी ऐसी क्लास को नहीं पढ़ाया। Hurry up, जल्दी करो, जल्दी करो। Finish your homework, अपना काम ख़त्म करो, अपना काम और अपना घर का काम ख़त्म करो। Enjoy your holidays, अपनी छुट्टियों को enjoy करो, अपनी छुट्टियों को enjoy करो। Goodbye, अलविदा, अलविदा। See you on Monday, आपसे मंडे को मुलाकात होगी, आपसे मंडे को मुलाकात होगी। See you next week, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। See you in September, आपसे सितंबर में मुलाकात होगी, आपसे सितंबर में मुलाकात होगी। Remember to do your homework, अपना घर का काम करना याद रखना, अपना घर का काम करना याद रखना। See you tomorrow, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। Make a queue, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। Make a line, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। Everyone should go to the assembly hall, हर
किसी को असेंबली वाले हॉल में जाना, हर कोई असेंबली वाले हॉल में जाए. इट्स बेटर इफ वी से हर कोई असेंबली वाले हॉल में जाए. हर कोई असेंबली वाले हॉल में जाए. पार्डन, माफ करना. एक्सक्यूज मी, माफ करना, माफ करना. एक्सक्यूज्ड, माफ किया, माफ किया. श्योर, यू कैन गो. बिल्कुल तुम जा सकते हो और सकती हो फॉर फीमेल. बिल्कुल तुम जा सकते हो. Does anyone has an extra pen? क्या किसी के पास इजाफी पेन है? क्या किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है, इजाफी पेन है? Does anyone need an extra sheet? क्या किसी को एक्स्ट्रा शीट चाहिए? क्या किसी को एक्स्ट्रा शीट चाहिए? Tie up your tie. Tie up your tie. अपनी टाई को बांधो. अपनी टाई को बांधो. Tie up your laces. अपने तस में बांधो. अपने तस में बांधो. Everyone should wear a neat uniform. हर किसी को साफ यूनिफॉर्म पहनना चाहिए. हर किसी को साफ यूनिफॉर्म पहनना चाहिए. राइट नीटली. साफ साफ लिखो. साफ साफ लिखो. Everyone should write an essay on my best friend. हर किसी को अपने बेस्ट फ्रेंड पर मजमून लिखना चाहिए. हर किसी को अपने बेस्ट फ्रेंड पर मजमून लिखना चाहिए. बेहतरीन दोस्त पर मजमून लिखना चाहिए. Attempt the next question. अगला सवाल हल करो. अगला सवाल हल करो. Answer me. मुझे जवाब दो. मुझे जवाब दो. Why are you not answering me? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे फॉर मेल एंड दे रही फॉर फीमेल. तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? यू कैन आस्क हर. तुम उससे पूछ सकते हो और तुम उससे पूछ सकती हो फॉर फीमेल. तुम उससे पूछ सकते हो. यू कैन आस्क फॉर हेल्प. तुम मदद के लिए मदद के लिए कह सकते हो और सकती हो फॉर फीमेल. तुम मदद के लिए कह सकते हो. I can't answer it. It's a test. मैं इसका जवाब नहीं दे सकता और सकती फॉर फीमेल. ये टेस्ट है. मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, नहीं दे सकती. ये टेस्ट है. Your scores are falling. तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं. तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं. You were such a brilliant student. तुम कितने और कितनी फॉर फीमेल
शानदार स्टूडेंट थे और थी फॉर फीमेल। तुम कितने शानदार स्टूडेंट थे, तुम कितनी शानदार स्टूडेंट थी। What happened to you? तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। Close your books. अपनी किताबें बंद कर लें और दें। अपनी किताबें बंद कर दें। Close your notebooks. अपनी कापियाँ बंद कर दें। अपनी कापियाँ बंद कर दें। I will check it tomorrow. मैं इसे कल चेक करूँगा फॉर मेल एंड करूँगी फॉर फीमेल। मैं इसे कल चेक करूँगा। डू यू रिमेंबर वेयर वर वी? क्या आपको याद है कि हम कहाँ थे? क्या आपको याद है कि हम कहाँ थे? Can anyone tell me what did we do yesterday? क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमने कल क्या किया? क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमने कल क्या किया? Can you tell me what we did in the last class? क्या तुम मुझे बता सकते और सकती फॉर फीमेल हो कि हमने आखिरी क्लास में क्या किया था? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमने आखिरी क्लास में क्या किया था? We covered chapter number 10 in the last class. हमने आखिरी क्लास में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था। हमने आखिरी क्लास में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था। We have already done it. हम इसे पहले कर चुके हैं। हम इसे पहले कर चुके हैं। I have already covered it. मैं इसे पहले करा चुका फॉर मेल एंड चुकी फॉर फीमेल हूँ। मैं इसे पहले करा चुका हूँ। मैं इसे पहले करा चुकी हूँ। I will not do it again. मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा गी फॉर फीमेल। मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। मैं इसे दोबारा नहीं करूँगी। Look at the diagram number 2.1. Diagram number 2.1 को देखो। Diagram number 2.1 को देखो। What does it tell you? ये तुम्हें क्या बताती है? ये तुम्हें क्या बताती है? What do you want? तुम क्या चाहते फॉर मेल, चाहती फॉर फीमेल हो। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहती हो। Did you not do the breakfast or breakfast? क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? Have you not eaten during the recess? क्या तुमने रिसेस में नहीं खाया? क्या तुमने तुमने आधी छुट्टी में नहीं खाया? क्या तुमने आधी छुट्टी में नहीं खाया? Let's discuss it. चलो इसे डिस्कस करते हैं।
चलो इसे डिस्कस करते हैं। यू कैन स्टार्ट नाउ। आप अब शुरू कर सकते हैं। आप अब शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टॉप नाउ। आप अब रुक सकते हैं। आप अब रुक सकते हैं। लिसन टू मी केयरफुली। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? आर यू नॉट? आर यू पेइंग अटेंशन? क्या आप ध्यान दे रहे हैं? क्या आप ध्यान दे रहे हैं? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? क्या आप अपना सवाल दो फिर से पूछ सकते और सकती फॉर फीमेल हैं? क्या आप अपना सवाल दोबारा पूछ सकते हैं? क्या आप अपना सवाल दोबारा पूछ सकती हैं? ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करो। अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करो। कैन यू डू इट? क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप ये कर सकते हैं? और क्या आप ये कर सकती हैं फॉर फीमेल? क्या आप ये कर सकती हैं? डज एनीवन नो हाउ टू से इट इन इंग्लिश? क्या किसी को पता है कि इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? क्या किसी को पता है कि इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? राइट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 का जवाब लिखें। सवाल नंबर 6 का जवाब लिखें। यू कैन स्टार्ट डूइंग द MCQs। आप MCQs करना शुरू कर सकते हैं। आप MCQs करना शुरू कर सकते हैं। हाईलाइट द हेडिंग्स। हेडिंग्स को हाईलाइट करें। हेडिंग्स को हाईलाइट करें। यूज द मार्कर टू हाईलाइट द हेडिंग्स। हेडिंग्स को हाईलाइट करने के लिए मार्कर का इस्तेमाल करो। हेडिंग्स को हाईलाइट करने के लिए मार्कर का इस्तेमाल करो। इज़ इट सो? क्या ये ऐसा ही है? क्या ये ऐसा ही है? डू यू नॉट एग्री? क्या आप एग्री नहीं करते? क्या आप एग्री नहीं करते? डू यू ऑल एग्री विथ मी? क्या आप सब लोग मुझसे एग्री करते हैं? क्या आप सब लोग मुझसे एग्री करते हैं? ब्रिंग सम एक्स्ट्रा मनी फॉर द फेयरवेल। फेयरवेल के लिए इजाफी पैसे लाना। फेयरवेल के लिए इजाफी पैसे लाना। जॉन कलेक्ट द कंट्रीब्यूशंस। जॉन पैसे इकट्ठे इकट्ठे करो। जॉन पैसे इकट्ठे करो। डज एनीवन नो द आंसर? क्या किसी को
जवाब का पता है? क्या किसी को जवाब का पता है? यू आर राइट, तुम ठीक हो, तुम दुरुस्त हो, तुम ठीक हो। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम गलत हो। आई विल elaborate it with an example. I will elaborate it with an example. मैं इसे एक मिसाल से समझाता और समझाती हूँ। मैं इसे एक मिसाल से समझाता हूँ। I will write it on the blackboard. मैं इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगी। मैं इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा। शो मी योर आंसर। मुझे अपना जवाब दिखाओ। मुझे अपना जवाब दिखाओ। हु नोज द आंसर? जवाब किसे आता है? जवाब किसे आता है? रेज योर हैंड्स। अपने हाथ खड़े करो। अपने हाथ खड़े करो। यू आर करेक्ट। आप ठीक हैं और आप दुरुस्त हो। तुम दुरुस्त हो। ट्राई अगेन। फिर से कोशिश करो। फिर से कोशिश करो। ट्राई टू आंसर वंस मोर। एक दफ़ा फिर से जवाब देने की कोशिश करो। एक दफ़ा फिर से जवाब देने की कोशिश करो। डोंट बी सॉरी। अफसुर्दा ना हो। अफसुर्दा ना हो। इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। शार्पन योर पेंसिल। अपनी पेंसिल को घड़ो। अपनी पेंसिल को घड़ो। फिल अप योर फाउंटेन पेन। अपने पेन में इंक भरो। अपने पेन में इंक भरो। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? क्या आप सवाल को दोहरा सकते हैं और सकती हैं? क्या आप सवाल को दोहरा सकते हैं? दिस क्वेश्चन इज इरेलीवेंट। ये सवाल रेलेवेंट नहीं है। ये सवाल रेलेवेंट नहीं है। डिड यू बोरो हिज पेन? डिड यू बोरो हिज पेन? क्या तुमने उसका पेन लिया था? क्या तुमने उसका पेन लिया था? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरी बात बहुत गौर से सुनो। मेरी बात बहुत गौर से सुनो। कम टू द बोर्ड प्लीज़। बोर्ड पर आओ। बोर्ड पर आओ। क्लीन द बोर्ड प्लीज़। बोर्ड को साफ करो। बोर्ड को साफ करो। ओपन द बुक टू पेज नंबर 2। किताब का सफ़ा और पन्ना नंबर 2 खोलो। किताब का सफ़ा नंबर पन्ना नंबर 2 खोलो। लिसन टू मी। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। रिपीट आफ्टर मी। मेरे बाद बोलो और दोहराओ। मेरे बाद दोहराओ। लुक एट मी वाइल आई एम टॉकिंग टू यू। जब मैं तुमसे बात कर रहा और रही फॉर फीमेल हूँ तो
मेरी तरफ देखो। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखो। रीड द टेक्स्ट। टेक्स्ट को पढ़ो। टेक्स्ट को पढ़ो। रीड ऑल द क्वेश्चंस। सब सवालों को पढ़ो। सब सवालों को पढ़ो। आंसर इट केयरफुली। ध्यान से इसका जवाब दो। ध्यान से इसका जवाब दो। क्लोज द बुक एंड पुट इट अवे। किताब बंद कर दो और इसे दूर रख दो। किताब बंद कर दो और इसे दूर रख दो। वर्क इन पेयर्स। जोड़ियों में काम करो। जोड़ियों में काम करो। जोड़ियों में काम करो। वर्क इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में काम करो। ग्रुप्स में काम करो। योर ग्रुप इज़ वेरी बिग। आपका ग्रुप बहुत बड़ा है। आपका ग्रुप बहुत बड़ा है। So, ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. If you have any question, then you can ask me in the comments below. Please like this video and please share it with your friends and family members on social media websites. If you are new, then please subscribe to my channel and hit the bell icon. I will see you next time. Thank you very much. Good day.